Hi guys, I'm your friend Nishant from Global Acres. So आज हम आए हैं कृसुमी Waterside Residences on CPR सेक्टर 36A गुड़गांव में ये प्रोजेक्ट है। द्वारका एक्सप्रेसवे का एक ये नया लॉन्च है और आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मेरे साथ हैं आज कृसुमी के असिस्टेंट जनरल सेल्स मैनेजर मिस्टर बॉबी। सो आज बॉबी जी आपको प्रोजेक्ट पूरा एक्सप्लेन करेंगे और जिसके की पॉइंटर्स जिसके बारे में आपने शायद कृसुमी प्रोजेक्ट के बारे में आपने शायद पहले समझा होगा, देखा होगा या और भी कुछ आपने जाना होगा इस प्रोजेक्ट के बारे में, बट कुछ बेसिक पॉइंट्स जो आज इसमें वैल्यू ऐड करते हैं, इसकी अफोर्डेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, प्लस कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि मार्केट के लिए सरप्राइज हैं। सो वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बॉबी जी से कि आप थोड़ा सा मेरे को पहले सर कृसुमी का बैकग्राउंड, सिंस इट इज अ जॉइंट वेंचर, तो कौन सी दो कंपनीज का जॉइंट वेंचर है, इंडो जापानीज प्रोजेक्ट, उसके बारे में सर थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को ब्रीफ करिए प्लीज। Good morning everyone, I'm Bobby from Krisumi. I'm an assistant general manager sales in Krisumi. So first I would like to give you an introduction about Krisumi, what is all about Krisumi. So this is the first Indo-Japanese joint venture in India. Okay. Our Indian partner is Krishna Group, who is the biggest automobile component manufacturing company, and Japanese are Sumitomo Corporation. I think Sumitomo Corporation, as everybody knows, it's a big name. So it is basically a 400 years old brand, and they are also into 162 various businesses. So real estate is also a part of their vertical. Okay. So they have delivered more than 300 projects across the globe, like US, China, Indonesia, Japan, and now with Krisumi in India. Right? Okay. So that's about the brand, what we are as Krisumi. Right? Okay. It's a purely 50-50 joint venture between both the partners. Okay. So India में कृसुमी का सर ये first project है? Yes, it is the first project. And Sumitomo की sir, Sumitomo Corporation की we talk about as a group, they have their banking division also in India. Absolutely, right? I said, as I rightly mentioned in the starting, that they are into 162 various businesses. Okay. So you name a business, they are into it. They are into banking, they are into oil and gas, they are into real estate. They are also known as Copper King of Japan, and they're also into construction, and they're also into real estate as well. Great. And FMCG as well. FMCG is one of the biggest, so yes, they are into everything. Okay. तो सर अभी जो इस प्रोजेक्ट का कंसेप्ट है, बेसिकली हमने देखा फेज 1 इसका आया था, फेज 1 लॉन्च हुआ था जिस पे आपने शायद 3 टावर्स लॉन्च किए थे, देन यू केम अप विद फेज 2 जिसमें स्टूडियोज आए थे। नाउ व्हाट डू वी हैव इन लाइक फेज 3 एंड फेज 4? मतलब इसमें इन्वेंटरी टाइप्स क्या मिलते हैं? अगर अपार्टमेंट टाइप्स की हम बात करें, क्या क्या इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं? So we have launched recently like 2 phases we have launched, phase 3 and phase 4. So I'll start with phase 4 because phase 4 is basically a studio apartments, you can say that. So with the second success of our second phase, which is Waterfall Suites, wherein 320 apartments हमने 2 दिन के अंदर बेच दिए थे. I think you were also aware of it. I'm aware of and we got almost 1000 checks for 320 apartments. That's so with that success, we see that there's a lot of potential for these kind of apartments. Now we have launched our phase 4 again, Waterfall Suites 2. Okay. So this is standing at a height of G+46, and wherein we have 3 sizes available here. One is 940, which is 1 LDK with 1 toilet, and then you have 1012, which is 1 LDK with 2 toilets, and then you have 1172, which is 1 LDK with 2 toilets. So these are the 3 sizes which we have launched right now. Okay. इसके अलावा सर ये फेज 4 की हमने बात की, फेज 3 में सर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं? फेज 3 विल गो, फेज 4 में हमारे पास स्टूडियो अपार्टमेंट्स आए हैं अभी, और फेज 3 में ये 3 टावर्स हैं बेसिकली। तो 3 टावर्स में इसमें क्या टाइप्स मिलते हैं सर? So basically, phase 3 is Waterside Residences. Okay. So the name itself suggests that there's a lot of serene living in and around the project. Okay. So phase 3 consists of 3 towers. Okay. So this is tower 1. Okay. So consists of G+35 story. Okay. And there are 4 apartments in each floor, and all 4 apartments are 2700 square feet size. Okay. So this is 3 LDK plus S. 3 LDK plus S. S. So these are the biggest size we have. So what we have done is we've given a standalone tower because all 4 apartments are same size. Okay. Right. And these 2 towers, this is WR2. Okay. Which is standing at G+39, and that is WR3, which is at G+42. Okay. So each tower will have 6 apartments in each floor. Okay. In each floor, and the sizes starts from 2 LDK, which is 1740 square feet, and then you have 2 LDK plus S, which is 1925 and also 1965. Okay. Right. And 3 bedroom, which is 2260. So 3 is simple 3 bedroom without any servant quarter. Okay. So basically these 4 apartments what you see are basically 3 bedroom apartments. Achha. So these are the 5 sizes we have
in phase 3. Waterside Residences. Okay. So we'll talk about global city, sir. Global city आपको मतलब एडजेसेंट यहाँ पे ग्लोबल सिटी का लैंड है डेडिकेटेड, उसके बाद हमारी यूएसपी क्लब हाउस है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले सर मैं ये समझना चाहूँगा जो अपने 1 LD लॉन्च किए हैं, पहले बहुत मैसिव रिस्पांस आया, 1000 चेक्स आए 1 दिन के अंदर और 2 दिन के अंदर पूरा वो टावर सोल्ड आउट हो गया। नाउ इसके लिए भी बहुत अच्छा रिस्पांस फेज 4 के लिए भी स्टूडियो अपार्टमेंट्स के लिए आया है। सो इनका सर अगर हम इन्वेस्टमेंट प्रॉस्पेक्ट देखें, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है, क्या रेंटल यील्ड आ सकता है यहाँ पे, हाउ दिस इज गोना बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर, अगर आप स्टूडियो की बात करते हैं पूरे गुड़गांव में इस टाइम पे, बिकॉज कोई भी नए प्रोजेक्ट में स्टूडियो इस टाइम पे नहीं है किसी भी ब्रांड की अगर हम बात करें, तो दिस इज द ओनली प्रोजेक्ट वेयर वी आर हैविंग स्टूडियो अपार्टमेंट्स, और स्टूडियो के साथ इतनी ज्यादा प्रीमियम अमेनिटीज हमें मिलती हैं। तो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल कैसा रहेगा सर इसमें, एंड टिकट साइज कहां से स्टार्ट होता है? सॉरी। सो बेसिकली अगर हम स्टूडियोज की बात करते हैं तो गुड़गांव में ना बहुत सारे स्टूडियोज है जो जनरली कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में बनते हैं। ओके। सो दिस इज नॉट द सेम काइंड ऑफ स्टूडियो। ये बेसिकली एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है with all the amenities roped up in the project itself. Right. So basically क्या हमारा targeting audience for these studios are basically company leasing and expats. Okay. So क्योंकि हमारा जो location है, we are actually located at near to the Manesar, Bhiwadi, Bawal and then Nimrana. Right. So all these Japanese zone माना जाता है. Right. So ये investment क्यों investment के लिए अच्छी चीज़ है, मैं आपको पहले वो बताता हूँ। ठीक है। कि अगर आप रेसिडेंशियल में कहीं पे भी आप इन्वेस्ट करते हैं, सो 40 लाख से लेके 40 करोड़ तक कभी अगर आपकी प्रॉपर्टी है, जो रेंटल यील्ड है बेसिकली उस पे मैक्सिमम जो है 2 से 2.5% इज हाईएस्ट इन इंडिया, राइट। बट जो अपार्टमेंट्स, जिन अपार्टमेंट्स की आपने मुझे सवाल पूछा और जिन अपार्टमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, जो स्टूडियोज है, सो जैसे मैंने आपको बताया कि इनका हमारा टारगेटिंग जो है वो दैट इज बेसिकली प्योरली हमारा कंपनीज है। सो दीज 4 बेल्ट्स में जो, तो ये कंपनी लीज होगा। सो इस पे बेसिकली हमारा जो करंट प्राइसिंग की अकॉर्डिंग 2 करोड़ से इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है और 2.5-2.60 तक का जाता है, डिपेंड्स अपॉन दी साइजेस, जो आप साइजेस क्या चुनेंगे। बट इस पे अगर आप आरओआई देखेंगे 5.5 से 6% के आसपास रिटर्न। दिस इज एज गुड एज कि आपने कमर्शियल में इन्वेस्ट किया है। सो जैसे तभी मैंने बोला था ना कि रेसिडेंशियल ही है, ये भी रेसिडेंशियल है, बट लेकिन इस पे इन्वेस्टमेंट कम है लेकिन आपका जो रिटर्न है बहुत हाई है। कारण क्या है, हमारा इसका जो टारगेटिंग ऑडियंस है जिसको लीजिंग करवाएंगे हम, वो बेसिकली प्योरली कंपनीज है, नॉट इंडिविजुअल्स। जनरली आपको भी पता है कि इंडिविजुअल को अगर आप लीज पे देते हैं तो अगर मान लो कि एक्स अमाउंट देते हैं, तो सेम अपार्टमेंट अगर आप कंपनीज को लीज करते हैं तो वो डबल हो जाता है। ओके। सो इसीलिए इनका जो रिटर्न है आरओआई रेंटल के वास्ते जो आरओआई मिलता है आपको जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो बेसिकली डबल से भी ऊपर हो जाता है, 5-5.5%। सो दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ हॉट केक इन द मार्केट, क्योंकि ऐसे अपार्टमेंट्स कोई नहीं बना रहे, कोई लॉन्च भी नहीं हो रहा है। अग्री। सो सर यहाँ पे ग्लोबल सिटी का एक मतलब ये जो लोकेशन है, दिस इज द लोकेशन वेयर इन आप अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो ग्लोबल सिटी का जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज है वो आपको मिलता है। उसका रीजन है कि 1080 एकर्स का एक लैंड पार्सल इस प्रोजेक्ट के जस्ट बैक साइड में सिचुएटेड है। उसके बारे में सर आपको थोड़ा सा बताएंगे, सो दैट कि आपको मैं बहुत सारे क्लाइंट से मैंने बात की, उनको अभी तक ग्लोबल सिटी पता ही नहीं है कि ग्लोबल सिटी का कोई कंसेप्ट है, किसका ये इनिशिएटिव है, क्या ग्लोबल सिटी में आने वाला है, और क्या 10 साल बाद यहाँ पे जो फेट चेंज होने वाली है गुड़गांव की वो कैसे होगी, और मतलब अभी उसमें क्या चल रहा है, क्या एक्शन चल रहा है, तो उसके बारे में सर आपको थोड़ा सा बताएंगे। So बेसिकली अगर हम देखेंगे कि ग्लोबल सिटी एक 1100 एकड़ पे ये बन रहा है, हमारे लिए क्या एडवांटेज है कि हम जैसे 36A में हैं, सो ग्लोबल सिटी इज स्प्रेड इन 4 सेक्टर्स। हमारी जस्ट पीछे ग्लोबल सिटी आ रही है, इतनी बड़ी सिटी। सो ग्लोबल सिटी इज ऑल्सो अ रेगुलर नॉर्मल, जैसे अगर आप इंडिया में देखेंगे तो बहुत सारे आपने स्मार्ट सिटीज कॉन्सेप्ट सुना होगा, सो बहुत सारे स्मार्ट सिटीज आपने देखा भी होगा, राइट। सो ये भी एक स्मार्ट सिटी है, बट लेकिन ये जो ग्लोबल सिटी है, अगर मैं एग्जांपल लूं इसका, जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिस तरीके का HSIDC डेवलप करने की कोशिश कर रहा है इस चीज को, अगर आपने बिजनेस बे ऑफ दुबई सुना है, बिल्कुल जो इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वल कहते हैं, सो 250 एकड़ पे बिजनेस बे ऑफ दुबई बना हुआ है। तो ये 1100 एकड़ है, तो HSIDC और हमारी इंडियन गवर्नमेंट इस ग्लोबल सिटी को 4 बिजनेस बेस ऑफ दुबई बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, मतलब इट इज सो ग्लोबल कि इट इज नॉट जस्ट रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल, यू विल हैव सो मेनी थिंग्स कमिंग अप इनसाइड द ग्लोबल सिटी। सो बेस्ट एडवांटेज टू क्रिसूमी इज वी आर शेयरिंग द बाउंड्री वॉल विद ग्लोबल सिटी। अगर आप मानिए कि इतनी बड़ी
एक बिजनेस वे ऑफ दुबई जैसा सिटी हमारी पीछे बन रहा है, अगर आप यहाँ पे क्रिसूमी में इन्वेस्ट करते हैं आज की डेट में, वट एवर दी प्राइसिंग विच वी आर रिलीजिंग राइट नाउ, सोचिए सर 4-5 साल में जब ग्लोबल सिटी में कुछ फुटस्टेप्स मूव होंगे और कुछ चीजें डेवलपमेंट होंगे, तो सोचिए आपकी इन्वेस्टमेंट किस तरीके से ग्रो करेगा। डेफिनेटली। और जो फेस 1 क्रिसूमी ने लॉन्च किया था, फेस 1 वाज लॉन्च एट अराउंड 9,000 रुपीज, 9,000 रुपीज पे लॉन्च हुआ था, और आज उसकी रीसेल मार्केट में होती है अप्रोक्सीमेटली 20-21,000 रुपीज। सो डबल आपका एप्रिसिएशन हुआ है इन जस्ट 3 to 4 ईयर्स। सो आप समझ सकते हैं कि इस जगह में कितना पोटेंशियल है जहाँ पे आज हम खड़े हैं। एंड उसके अलावा ये प्रोजेक्ट कवर करना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि इनका क्लब हाउस, आप समझिए कि अभी तक द्वारका एक्सप्रेसवे पे इतने सारे लॉन्चेस के आपने नाम सुने होंगे, एक भी बिल्डर ने ऐसा नहीं है जिनके पास अभी तक इतने बड़े साइज का इतना मैसिव और इतना लेविश क्लब हाउस हो। क्लब हाउस इज अबाउट 1.62 लाख स्क्वायर फीट। सो उसके बारे में सर, क्लब हाउस में आप क्या क्या अमेनिटीज लेके आ रहे हो, आपने मतलब कैसे प्लान किया है इसको, क्या डिजाइन किया है इसके अंदर? सो बेसिकली आप देख सकते हो जो पीछे बैकग्राउंड में जो चल रहा है, सो दिस इज आवर क्लब, सो द नेम इज द कैस्केड्स क्लब, यू कैन सी दैट। सो इस पे 1.62 लाख स्क्वायर फीट की हम क्लब दे रहे हैं, जो क्रिसूमी सिटी के लिए है, सो एक्सक्लूसिवली फॉर क्रिसूमी सिटी। सो अगर हम क्लब की बात करेंगे तो यू विल हैव ऑल द इम्यूनिटीज इनसाइड। अगर आप किसी भी क्लब्स पे जाते हैं दिल्ली एनसीआर पे, जो चीजें नहीं मिलेंगे आपको वो यहाँ पे कैस्केड्स क्लब पे मिलेंगे। तो जैसे कि अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूं, सो फॉर एडल्ट्स के लिए यू हैव प्राइवेट डाइनिंग, टेपन्या के रूम जो लाइव किचन होता है जापानीज का, एंड देन यू हैव सिगार लॉन्ज, यू हैव स्पोर्ट्स बार, and you also have many restaurants, Japanese restaurants and all. For kids, I would say that looking at the weather conditions in Delhi NCR, you have everything in house. Okay. You know, everything is indoor basically. You have indoor football, indoor basketball, you have indoor cricket practicing net pitch, you have a wall to climb. So there are so many things. We have tried this time pretty much different from the market. So मुझे ऐसा लगता है कि गुड़गांव जो द्वारका एक्सप्रेसवे की बेल्ट है 18-20 किलोमीटर का, मुझे नहीं लगता है कि भाई फ्यूचर में इतना बड़ा क्लब कोई बना पाएंगे। और कितनी कॉस्टिंग आप स्पेंड कर रहे हैं इस क्लब हाउस को बनाने में? अप्रोक्सीमेटली अराउंड 250 करोड़ के आसपास हम क्लब के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। दिस इज एब्सोल्युटली ह्यूज। So we wanted to make a jewel for the Krisumi city and to show that people talks about things, right? So ये new Gurgaon area में people will talk about the Cascades Club. So that's what we want. So this is gonna be the address. Absolutely, absolutely. Krisumi city. वेरी नाइस। सो आपने सुना कि कितना बड़ा, कितना मैसिव क्लब हाउस यहाँ पे आ रहा है, बिकॉज आज के टाइम में आपने देखा होगा कि मार्केट में बिल्डर फ्लोर्स की डिमांड बहुत कम हो गई है। उसका रीजन ये है कि पीपल आर बाइंग लाइफस्टाइल नाउ, दे आर नॉट बाइंग प्रॉपर्टी एनीमोर, दे आर बाइंग लाइफस्टाइल, दे वांट एवरीथिंग इनसाइड देयर कॉन्डोमिनियम्स। सो ये क्लब हाउस आपको डेफिनेटली एक बार साइट पे आके इसका मॉडल विजिट करना चाहिए, देखना चाहिए। अगर आपका लेने का प्लान नहीं भी है, इन केस यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट डाउन द लाइन आफ्टर 6 months or an year, you should come here once, you should see the club house, you should see the model, and उसके बाद आपको अगर अच्छा लगता है तो अच्छी बात है, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू विल हैव एन फेयर आइडिया कि मार्केट में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और आपको अगर अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्लान करनी है तो किस तरह की वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर हम 10 साल बाद की बात करें, आज यहाँ पे हम 10 साल अगर पीछे चले जाते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट्स में, तो किसी भी प्रोजेक्ट में 10 से 20 हजार स्क्वायर फीट से ज्यादा का क्लब हाउस आपको नहीं मिलता है। आज हम यहाँ पे 2024 में बात कर रहे हैं अबाउट 1.6 लाख स्क्वायर फीट ऑफ क्लब हाउस। 10 साल बाद भी अगर इस प्रोजेक्ट को आप देखेंगे तो ये प्रोजेक्ट आपका आउटडेटेड नहीं होगा, ये बिल्कुल एज पर करंट मार्केट सिनेरियो रहेगा 10 साल बाद की मार्केट के हिसाब से भी अगर हम बात करें। वाइल अदर प्रोजेक्ट्स की हम बात करते हैं 30-40 हजार स्क्वायर फीट के, जहाँ पे क्लब हाउस है, ज्यादा अमेनिटीज नहीं है। सो वो इस प्रोजेक्ट के अगर कंपैरिजन में उनके प्राइसेस चेक करेंगे, आप कुछ भी आप कंपैरिजन करते हैं तो वो कहीं ना कहीं इससे इंफीरियर ही रहेंगे। सो सर इसमें प्राइसिंग का थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि प्राइसिंग अभी क्या है और क्या इंक्रीज हम प्लान कर रहे हैं। करंट अगर हम आज की डेट में प्राइसिंग की बात करते हैं तो हमने जो ओपन किया था आफ्टर इनॉग्रल डिस्काउंट 20,800 से लेके 21,950 तक हमारा करंट प्राइसिंग है। बट लेकिन एक कैच ये है कि 9 जून के बाद हम वो जो 2,000 रुपए इनॉग्रल विड्रॉ कर रहे हैं और प्राइस बढ़ाएंगे। सो जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं आपके, और मैं चाहता हूँ कि एक बार वो आए और प्रोजेक्ट की एक्सपीरियंस करें, और उनको अच्छा लगे तो आप आगे फॉरवर्ड डेफिनेटली टेक इट फॉरवर्ड। सो अगर हम 2,000 रुपए इनॉग्रल की बात करते हैं, एंड वी टॉक अबाउट देयर बिगेस्ट साइज 3 LDK प्लस एस 2700 स्क्वायर फीट का वो अपार्टमेंट है, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 2,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट, तो जो टोटल डिफरेंस आ जाता है ना विद इन नेक्स्ट 7 to 8 days उस अपार्टमेंट पे
probably somewhere around 50 to 54 लाख रुपीस का इंक्रीज होने वाला है. So this is probably मतलब एस्टिमेशन है, this is not exact. So 2000 रुपए का हम अगर इनॉग्रेट हटा देते हैं तो 50 लाख का डिफरेंस आपको सीधा आ जाता है. So सर अब बहुत सारे लोगों से मार्केट में ये सुनने को मिला कि 2 LDK का प्राइस जो है वो मतलब अगर हम आसपास के एरिया में कंपेयर करें, ऑल्दो वी ऑलवेज हैव अ एज कि ये एक मतलब जापानीज ब्रांड है, टाटा इज अ कंस्ट्रक्शन पार्टनर, एवरीथिंग इज टॉप नॉच. सो इसमें हम अफोर्डेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, जैसे कि आपने एक पेमेंट प्लान भी लॉन्च किया है 1090 का, सो क्या वो पेमेंट प्लान है, कौन से बैंक के साथ है, और उसमें हम कैसे इसको मतलब ज्यादा अफोर्डेबल बना के एक्सेप्ट कर सकते हैं? सो बेसिकली क्या है ना कि गौरव जी, हमने देखा है कि हमारा पेमेंट प्लान है 25x4. ओके, जिसपे फर्स्ट 25% अगर मान लो कस्टमर के पास नहीं है या कस्टमर बैंक का हेल्प लेना चाहते हैं, तो हमने HDFC के साथ मिलके एक पेमेंट प्लान लाया है. ओके, जहां पे आपको 10% आप अपनी खुद की कंट्रीब्यूशन देना होता है. बाकी 36 महीने तक जितने भी हम पेमेंट मांगेंगे वो बैंक देता रहेगा. बेसिकली आपको जो पे करनी है वो खाली जो इंटरेस्ट है, जितनी अमाउंट आप डिस्बर्समेंट करवा रहे हो उतनी अमाउंट का आपको एवरी मंथ आपको इंटरेस्ट पे करना होगा. फॉर एग्जांपल देख लेते कि मान लो 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है फॉर एग्जांपल, जिसपे से 10% आपने 20 लाख रुपए दिया, उसके बाद नेक्स्ट जो 15% 90 दिन में देना है, राइट? जो 90 दिन में जो 15% देना है वो आपकी बिहाफ पे बैंक पेमेंट कर देंगे, व्हिच इज अराउंड 30 लाख रुपीस अप्रोक्सीमेटली, राइट? सो 30 लाख बैंक ने दे दिया. 30 लाख का अगर हम जनरली जो आज की डेट में जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8.65 रफली टेंटेटिवली वही रेट है. सो अगर उस हिसाब से देखेंगे तो 21,000 रुपए के आसपास आपको हर महीना उसका आपका जो इंटरेस्ट पे करना होगा. और 1 साल तक हम कुछ पेमेंट भी नहीं मांग रहे आपसे, राइट? क्योंकि 1 साल के बाद आप एक लॉक इन भी खत्म हो जाता है, यू आर फ्री टू सेल. पहला ट्रांसफर भी फ्री है, हम कुछ चार्ज भी नहीं कर रहे हैं. सो नेक्स्ट डिमांड जो है 15 महीने के बाद है. इवन 15 महीने के बाद हम 10% मांग रहे हैं, वो भी आप बैंक से ले सकते हो. ओके, हाँ जी, जो खाली आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, बाकी सारी चीज 36 महीने. अगर हम मोटा मोटा समझे इसको कैलकुलेशन को, तो 10% आपको अभी देना है. फॉर एग्जांपल 2 CR की प्रॉपर्टी है, 10% आपने दे दिया 20 लाख रुपीस. उसके बाद आपका 75% का लोन अमाउंट सेंक्शन हो जाएगा. 75% ऑफ 2 CR वुड बी 1.5 CR. 1.5 CR में से अब जितनी भी ट्रांचेस डिमांड आती रहेंगी बिल्डर से, वो सारी डिमांड बैंक डिसबर्स करता रहेगा. आपको सिर्फ उसमें इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है. दिस इज नॉट इंटरेस्ट सबवेंशन प्लान. 1090 का पेमेंट प्लान है, बट इसमें 75% बैंक से अप्रूव होगा और जो भी आपका डिसबर्सल होगा उस पे आपको इंटरेस्ट पे करना है. सो सिंस आई एम एन एक्स बैंकर, मैं पहले सिटी बैंक में था, देन आई वर्क विद HSBC, सो यू कैन कनेक्ट विद मी टू अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट कैलकुलेशन. आई शेयर द कॉस्ट शीट विद यू अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट आउटफ्लो. कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 3 BHK 3 LDK यहाँ पे ऑप्ट करते हैं, उसकी कॉस्टिंग आती है, फॉर से एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ 4 CR की कॉस्टिंग आती है. 4 CR की कॉस्टिंग पे अगर आप 40 लाख रुपीस देते हैं तो आपका कितना आउटफ्लो होगा एंड आप कितना एप्रिसिएशन इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको कैलकुलेशन एक्सेल शीट में बना के शेयर कर दूंगा. एंड दैट इज जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट. उसमें कुछ नहीं है, आप सिर्फ डिस्कस करने के लिए, आप अपना आउटफ्लो जानने के लिए या फिर प्रॉपर्टी में पोटेंशियल जानने के लिए, रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है एंड आपका आउटफ्लो कितना रहेगा, उसके हिसाब से आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सिर्फ वो डिस्कस करने के लिए भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं. दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कभी भी. एंड सर, जैसे हमने देखा कि बहुत मैसिव रिस्पॉन्स आया जब आपने लॉन्च इवेंट किया, तो बहुत भीड़ थी यहाँ पे, शायद इतना रश था कि यहाँ पे पैर भी रखने की जगह नहीं थी. तो सर अभी अगर हम आपसे बात करें कि मेरे को अगर फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा डिमांडिंग चीज है 2 LDK या 3 LDK का स्मॉलेस्ट साइज, तो उसमें अगर हमें कुछ चीज मिलती है, मतलब कोई हमें हमारे क्लाइंट को कुछ पसंद आता है ऑप्शन, तो हमें अच्छी इन्वेंट्री मिल जाएगी सर? बहुत अच्छी इन्वेंट्री कोशिश करेंगे गौरव जी. देखो, अच्छी इन्वेंट्री का एक मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं 2 LDK की फेसिंग की बात करूँ तो वो सारे वाटर साइड ही है. मतलब वो तो मतलब अच्छा ही हो गया ना सर. तो वाटर साइड है, क्लब फेसिंग है, तो मतलब फिर उसमें सोचने वाली कुछ बात ही नहीं है. ठीक है, तो थैंक यू सो मच बॉबी जी, आपने पूरे प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. सो हमने इस वीडियो में सिर्फ आपको प्रोजेक्ट के बारे में आपको कम बताया, शायद हमने आपको इंपॉर्टेंट जो इसके की एस्पेक्ट्स है लाइक ग्लोबल सिटी, ठीक है, इसमें पेमेंट प्लान क्या आने वाला है, पेमेंट प्लान जो उन्होंने नया लॉन्च किया, प्लस इसकी प्राइसिंग इंक्रीज होने वाली है. अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज आप लेते हैं, तो आप ऑलरेडी 10 दिन के बाद शायद एप्रिसिएशन पे बैठे होंगे. उसके बाद जो भी यहाँ पे आसपास में विसिनिटी में डेवलपमेंट आएगा
वो जो डेवलपमेंट आएगा उसमें आपको जितने भी प्राइजेस मिलेंगे वो सब आपको इंक्रीज ही मिलेंगे। तो आप अगर यहाँ पे इस पॉइंट पे एंटर करते हैं तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं एज मिलेगा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और रहने के लिए तो दिस इज अ नो ब्रेनर। अगर एंड यूज के लिए आप कोई भी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, दिस इज अ नो ब्रेनर। एंड आज के लिए वीडियो में इतना ही, एंड आई थैंक यू सो मच बॉबी जी, आपने टाइम निकाला और पूरा हमारा व्यूअर्स को सब कुछ एक्सप्लेन किया। और आपको कोई भी इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको कुछ भी जानना है तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू जी, थैंक